অৱশেষত নিৰ্বাচনৰ বতৰ আহি গ'ল। আজি নিৰ্বাচনী আয়োগে 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিনাংক ঘোষণা কৰিছে। প্ৰশ্ন হৈছে কোন ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন কেতিয়া হ'ব? আমি দৰ্শকৰ জ্ঞাততে তথ্যখিনি সদৰি কৰিব বিচাৰিছোঁ। আজি নিৰ্বাচনী আয়োগে ঘোষণা কৰা তথ্য অনুসৰি ছত্তীশগড়ত 7 আৰু 17 নৱেম্বৰত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। অৰ্থাৎ দুটা ফেজত এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। মধ্যপ্ৰদেশত 17 নৱেম্বৰত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। নৱেম্বৰ মাহ সন্মুখত খুব বেছি এটা মাহ আছে। মিজোৰামত 7 নৱেম্বৰত বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব। ৰাজস্থানত 23 নৱেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন। তেলেংগানাত অনুষ্ঠিত হ'ব 30 নৱেম্বৰত। আচলতে নিৰাপত্তা বাহিনীৰ যাতে এখন জিলা ৰাজ্য বা সিখন লৈ যাব পাৰে আৰু সেইবাবে এই ব্যৱস্থা কৰা হৈছে 3 ডিচেম্বৰত। মনত ৰাখিব 3 ডিচেম্বৰত একেলগে ঘোষণা হ'ব 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল। এতিয়া নিৰ্বাচনত কি হ'ব পাৰে? ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলিছে প্ৰায় প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ। কোন কেনেকৈ কৌশল অৱলম্বন কৰিছে, আজি কোনে কি গেম খেলিছে চাওঁ। দেশত নিৰ্বাচনৰ বতৰ আহি গ'ল। লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হঠাৎ নিৰ্বাচনী আয়োগে সোমবাৰে ঘোষণা কৰিলে 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনৰ দিনাংক। লগে লগে সমগ্ৰ দেশজুৰি নিৰ্বাচনী বতাহ গৈছে। কংগ্ৰেছ আশাবাদী এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ভাল ফলাফল দেখুৱাব পাৰিব আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ গঠন হ'ব। একে আশা বিজেপি। 24 ঘণ্টাৰ পূৰ্বে হঠাৎ ঘোষণা কৰিলে ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী অশোক গেহলটে। এইবাৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে কংগ্ৰেছে জাতিগত জনগণনা কৰিব। সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'ল কংগ্ৰেছ ৱৰ্কিং কমিটিৰ বৈঠক। এই বৈঠকৰ সিদ্ধান্ত দেশজুৰি কংগ্ৰেছে জাতিগত জনগণনা আৰম্ভ কৰিব। 4 घंटे हमारी कास्ट सेंसस पे चर्चा हुई, डिस्कशन हुआ और एक ऐतिहासिक निर्णय कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने लिया है और यूनानिमसली लिया है। मगर मतलब कमरे में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसने अपना पूरा सपोर्ट कास्ट सेंसस का जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं दिया। तो काफ़ी खुशी की बात है। हमारे यहाँ चीफ मिनिस्टर्स बैठे हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर्स ने भी डिसीजन लिया है कि वो भी राजस्थान में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल में कास्ट सेंसस को आगे बढ़ाएंगे। तो अंग्रेजी में बोल दूं? জাতিগত জনগণনা কেৱল কংগ্ৰেছে কৰিব নেকি? ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ স্থিতি কি হ'ব? ৰাহুল গান্ধীয়ে এই ক্ষেত্ৰত কি কয়? आपका सवाल था कि क्या इंडिया अलायंस भी कास्ट सेंसस को सपोर्ट करेगी। तो मैंने कहा कि देखिए, कांग्रेस प्रेसिडेंट ने हमारी जो सबसे बड़ी डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसमें निर्णय लिया है कि हम कास्ट सेंसस को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिर्फ ये नहीं, मगर ये भी डिसीजन लिया है कि हम बीजेपी पर दबाव डालेंगे और उनसे करवाएंगे। अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर उन्हें परे हो जाना चाहिए, क्योंकि देश कास्ट सेंसस चाहता है। अब जहां तक इंडिया अलायंस की बात है, मैं जानता हूं कि काफी पार्टी इंडिया अलायंस में इस निर्णय का समर्थन करेंगी। 1-2 पार्टी हो सकती हैं जिनकी राय थोड़ी अलग हो। हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हम कोई फैशिस्ट सिस्टम नहीं है। मगर ज़्यादा से ज़्यादा पार्टियां इस डिसीजन को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगी। নিৰ্বাচনৰ বাবে ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন কৰিছে কংগ্ৰেছে। মোদী বিৰোধী শক্তিসমূহ একত্ৰিত কৰি লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত মোদীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত ইণ্ডিয়া এলায়েন্স। কিন্তু এই ইণ্ডিয়া এলায়েন্স গঠন হোৱাৰ পিছতেই প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিপদত পৰিছে এই মিত্ৰতা। ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ মাজত হঠাৎ মতভেদ। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত এই মিত্ৰতা নাথাকে। ৰাজস্থান, ছত্তীশগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশত প্ৰাৰ্থিত্ব দিব আপে।
हमारी तैयारी है। हम राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश में पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। वे जल्दी आने वाली है, बताएंगे आपको जो भी होगा। নিৰ্বাচনক লৈ এতিয়া ন খেলা আৰম্ভ হৈছে। এইবাৰ নতুন খেলা আৰম্ভ কৰি দিছে বিজেপিয়ে। বিশেষকৈ ৰাজস্থান আৰু মধ্যপ্ৰদেশত খেল খেলিছে বিজেপিয়ে। মধ্যপ্ৰদেশৰ পিছত ৰাজস্থানত বিজেপিৰ নতুন খেল। 7জনকৈ সাংসদক প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়া হ'ল বিধানসভাত। মধ্যপ্ৰদেশতো 7জন সাংসদক বিধানসভাৰ টিকট দিছিল বিজেপিয়ে। টিকট দিয়া হ'ল সাংসদ ৰাজ্যবন্ধন ৰাথোৰক। अपने विधानसभा में काम कर पाएंगे और राजस्थान के अंदर जो एक बहुत बड़े परिवर्तन की ज़रूरत है, जो भ्रष्टाचार है, अपराध है, जिस तरह का यहाँ पे बेरोज़गारी जो करी हुई है, और मैं तो खुद एक उदाहरण हूँ, एक राजस्थान का साधारण नौजवान आत्मविश्वास और क्षमता की वजह से कर पाया मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी करा। तो बहुत सारे नौजवान हैं राजस्थान के अंदर जिनके अंदर अपार क्षमता है, उनको आगे रास्ता देना ये तो कुछ राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस वजह से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी को और जनता को धन्यवाद देता हूं कि आज ऐसा उनका आशीर्वाद रहा, ऐसा उनका विश्वास रहा कि आज अगर विधानसभा लड़ने के भी अगर अवसर मिला है तो वो मुझे मिला है। राठौर बीजेपी राजस्थान मुख्यमंत्री पदप्रार्थी नेকি? बीजेपी कौशल प्रकृतতে কি? क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि एक टीम ऐसी काम करे जो राजस्थान के अंदर वाकई में विकास की राजनीति कर पाए, परिवर्तन ला पाए। ये जो चेहरा की राजनीति जो हुई पिछले 5 साल में, इस चेहरे की राजनीति ने तो राजस्थान को बर्बाद कर दिया। चेहरा किसका हो, गहलोत का हो, सचिन पायलट का हो, अरे आपको इतने बड़े पद मिल गए, उससे आप संतुष्ट नहीं रहे। तो जीवन के अंदर जो मिलता है उससे संतुष्ट रह के काम करना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी में रिपोर्ट कार्ड की राजनीति होती है। आपको जो जिम्मेदारी मिली है आप रिपोर्ट कार्ड दिखाइए, अपना काम क्या करा आपने। आप वंशवाद नहीं, आपका नाम चल रहा है वो नहीं, आप रिपोर्ट कार्ड। सो बहुत ज़रूरी ये है कि जनता का चेहरा रहे सामने जिनकी सेवा करनी है। और दूसरा, अगर कोई चेहरा परिभाषित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से काम करते हैं, तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी का चेहरा है। एक शब्द में मोदी, एक शब्द में परिभाषित हो गया कि आप किस तरह के विकास का काम करेंगे, किस तरह का राजनीतिक युग लेकर आएंगे। নিৰ্বাচনৰ দিনাংক ঘোষণা কৰাৰ লগে লগে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে কংগ্ৰেছ। কংগ্ৰেছৰ দৃঢ় বিশ্বাস এই 5 ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচনত এইবাৰ কংগ্ৰেছে ভাল ফলাফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। भारत में एक नया इतिहास रचेंगे। ये इतिहास रचेंगे प्रजातंत्र विरोधी, संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के खिलाफ, जिन्होंने भारत के संविधान, भारत के दलितों, पिछड़ों, गरीबों, आदिवासियों, महिलाओं, युवाओं, उनकी जिंदगियों को दूभर बना दिया है, बेबस और बेहाल आम जनता को बना दिया है। महंगाई से, बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से इन 5 राज्यों के लोग अब पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार कर साबित करेंगे कि 2024 के अंदर एक बड़ा बदलाव देश में आएगा, जहां भाजपा को बाहर का रास्ता दिखाया। राजीव भवনত बही भूपेन बरार अंक कत বিজেপিয়ে কেইখন আসন পাব গণনা কৰিছে ভূপেন বৰাই। 24ত পদ পৰিৱৰ্তন হ'ব দেশত, ডিচেম্বৰতে পৰিৱৰ্তন হ'ব। চবেই জানে ডিচেম্বৰত দেশত ৰাজনৈতিক পদ পৰিৱৰ্তন হ'ব। মধ্যপ্ৰদেশ, ছত্তীশগড়, ৰাজস্থান, তেলেংগানা, মিজোৰাম এখনো বিজেপি নিজিকে, এখনো নিজিকে বিজেপি। মিজোৰামত বিজেপি এখন সিটত জিকিব, তেলেংগানাত বিজেপি 3খন সিটত জিকিব। আপোনালোকে লিখি লওক এই কথা। 3খন আসনত বিজেপি জিকিব তেলেংগানাত, মিজোৰামত এখনত জিকিব। ৰাজস্থানত আপুনি চাব বিজেপি কেনেকৈ তাজপাতৰ ঘৰ খহাদি খহিব, আপুনি চাই থাকক। খুব সোনকালে ঘটনাটো ঘটিব। মধ্যপ্ৰদেশত আপোনালোকে দেখি আছে, শ গাড়ী লৈ প্ৰচেছন কৰি কৰি মানুহে বিজেপিৰ পৰা কংগ্ৰেছলৈ আহি আছে। ইমান এনেকৈ ভাবি ল'ব নালাগে যে এইটো ৰাজতন্ত্ৰময় স্থায়ী। ৰাজস্থানত বসুন্ধৰা ৰাজেৰ শিবিৰে বিজেপিৰ টিকট পোৱা নাই। 7জনকৈ সাংসদক বিজেপিয়ে টিকট দিছে কিয়? मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को पूरा एहसास है कि वो चुनाव हार रहे हैं।
इसलिए मंत्रियों को टिकट दिया जा रहा है, सांसदों को टिकट दिया जा रहा है। मैं तो शुक्र अदा करता हूं कि प्रधानमंत्री को टिकट नहीं दिया गया। कहीं ऐसा ना होता कि प्रधानमंत्री को टिकट दे दिया जाता, चूंकि बीजेपी तो ये भी कह रही है कि प्रधानमंत्री की लीडरशिप में प्रांतों के अंदर चुनाव होंगे। अगर प्रांतों के चुनाव भी प्रधानमंत्री की लीडरशिप में हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनको भी मजबूर कर सकती थी कि किसी विधानसभा का चुनाव लड़ें। हालांकि सर এতিয়াৰ পৰা প্ৰচাৰ অভিযান চলিব পূৰ্ণগতি। বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ লগতে কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ নেতৃত্বই লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে দলক শক্তিশালী কৰিবলৈ চেষ্টা চলাব। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট NB নিউজ। এইখিনি সময়তেই কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দাবী কৰিছে যে চৰকাৰ গঠন কৰিব কংগ্ৰেছে, ক'ত কেনেকৈ চৰকাৰ গঠন কৰিব তাৰ বিষয়ে ক'বলৈ গৈ আচলতে জিভা পিছলি গৈছিল ৰাহুল গান্ধী। कहा कि बीजेपी के 10 स्टेट्स हैं, एक उनका ओबीसी चीफ मिनिस्टर है, तो मध्य प्रदेश में उनकी सरकार जारी है, राजस्थान में भी सरकार जारी है, छत्तीसगढ़ में भी जारी है, तेलंगाना में जारी, सॉरी उल्टा बोल दिया छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार है, आ रही है, आपने कंफ्यूज कर दिया मुझे। राजस्थान में आ रही है, छत्तीसगढ़ में आ रही है, मध्य प्रदेश में जा रही है, तेलंगाना में उनकी जा रही है, हमारी आ रही है। नहीं, सीरियसली कहूं तो माहौल बहुत पॉजिटिव है और मैं चारों जो हमारे स्टेट्स हैं उनके बारे में कह सकता हूं। जो गहलोत जी ने हेल्थ केयर का स्ट्रक्चर जो बनाया है, शायद वो दुनिया में एक ऐतिहासिक हेल्थ केयर का सिस्टम राजस्थान की सरकार ने बनाया है। और जो काम राजस्थान की सरकार ने गरीबों के लिए किया है, ऐतिहासिक काम किया है। कर्नाटक में हमारी जो 5 गारंटीज हैं, जो सोशल प्रोटेक्शन की जो स्कीम्स हैं, वो अनमैच्ड है। आप किसी भी स्टेट में चले जाइए, आप पूछ लीजिए, आपको ऐसा सोशल प्रोटेक्शन का स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। छत्तीसगढ़ में जो किसानों के साथ हमारे चीफ मिनिस्टर ने किया, जो उनको धान के लिए दाम मिलता है, सबसे ज़्यादा मिलता है हिंदुस्तान में, जो कनेक्टिविटी उन्होंने बनाई है, जो हमारे छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाए हैं, जो ऐतिहासिक काम किया है। और अगर सुक्खू जी के बारे में समझना चाहते हैं तो जब हिमाचल को चोट लगी तो उनका रिस्पांस जो था, जमीनी रिस्पांस, लोगों के बीच में जाकर रिस्पांस, वैसा रिस्पांस शायद मैंने तो पहले नहीं देखा है। तो हमारी जो 4 सरकारें हैं अच्छा काम कर रही हैं। मुझे लगता है हम इन चुनाव में बहुत अच्छा करेंगे। मिजोरम में मैं अभी जा रहा हूं, काफी पॉजिटिव माहौल है और जनरली लोगों में गुस्सा है। 1-2 कारण है, बेरोजगारी, महंगाई